friends, I, C. Anshul Agrawal, welcome you all to my virtual study room of CA Foundation, paper number 1, Principles of and Practices of Accounting. We are here now in chapter number 5, Concept and Introduction to Accounting Standard. My dear friends, now if you analyze my class book, I have divided all the topics into various categories and we are done with category A of topics, that was the topics relating to accounting essentials, and there we completed chapter number 1, Introduction to Accounting, Accountancy Introduction and Basic Concepts, chapter number 2, Accounting Process, chapter number 3, Bank Reconciliation Statement, and chapter number 4, Rectification of Errors. So दोस्तों, जब ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है कैटेगरी ए, ये 4 टॉपिक्स, तो अब ये एक अजम्पशन है या ये एक प्रिजम्पशन है कि आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आते होंगे. वी आर नाउ स्टार्टिंग विथ कैटेगरी बी ऑफ द टॉपिक्स, दैट इज द टॉपिक्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. This is something which is very new for everyone, but yet it's very important. My dear friends, please understand and start your beginning, building your foundation of accounting standards very gradually, very slowly and properly, because ये जो फाउंडेशन अभी हम यहाँ बिल्ड करने वाले हैं, इस पे आपको कई स्टैंडर्ड्स को रेस्ट करना है. समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छे से समझिएगा. दोस्तों, मुझे काफी लोगों ने कहा कि सर आपने इसे अपनी बुक में अलग टॉपिक क्यों बनाया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसकी जरूरत क्या थी? बिकॉज अगर आप रेफर करते हैं आईसीआर मॉड्यूल तो वहां इस नाम का कोई टॉपिक नहीं है, वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट्स फ्रेमवर्क. सो अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? सो दोस्तों, मैं यहां पे आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, राइट फ्रॉम द डे 1, फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक till the time I'll complete all the topics, I will always keep one objective in my mind, and the objective is that to prepare you guys not only for foundation but also to prepare you guys from the viewpoint of intermediate and CA final. I also teach at intermediate level group 1 paper number 1 accounting and group 2 paper number 5 advanced accounting, and also at CA final level paper number 1 financial reporting. So my dear friends, I know what is the clear-cut nexus, that is the relationship between the accountancy at these various levels, and therefore here I present in front of you this topic, chapter number 5, Introduction to Accounting Standards. Well, this topic is good for you because all you need to do in this topic is sit back and relax and just listen to me and understand the things what I explain you properly. Okay, तो हम start करते हैं ये topic को with the meaning of the first, foremost and the important word standard. What do you mean by this word standard? That is what you need to understand. ये word का मतलब क्या होता है? My dear friends, standard means benchmark. The word standard means what? Benchmark. What do you mean by the word benchmark? So the word benchmark means a point of comparison. तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose we are traveling somewhere by train, bus or in a plane, and we meet a small kid, maybe of first standard, second standard. So if we are just introducing to that kid, वो छोटे बच्चों से हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, so what question do we normally ask him? We tend to ask him, beta, what is your name? What is your father's name? What is your school's name? In which standard do you study? आपके टीचर का नाम क्या है? आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है? और अगर हम उससे भी छोटे बच्चों से मिलते हैं तो हम क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? A for apple, B for ball, C for cat and so on. लेकिन अगर हम किसी 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से मिलते हैं तो हम उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि बेटा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर स्कूल नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
What do you think may be the reason of this? हम ऐसा क्यों करते हैं? किया है ना सभी ने, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता है कि हम वो एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को जाके पूछते हैं, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हम क्यों नहीं उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश? ऐसा क्यों होता है कि हम उससे वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो उसके लेवल के हैं, ना कि वो क्वेश्चन पूछते हैं जो उसके लेवल से ज्यादा है. Suppose a student has completed his education till 3rd standard in any state from India, and now his parents are migrating to some another states. ध्यान से सुनना. तो suppose वो हिमाचल प्रदेश में था, he completed 3rd standard in Himachal Pradesh, any school, CBSE, state board, okay, and now his parents are getting migrated to Karnataka. तो अब वो बच्चा जब कर्नाटका में आएगा, will he not get admission in the next level, that is 4th standard, or will he again go to 3rd standard, or will he decrease to 2nd standard? The answer is he will get admission in 4th standard. Why is it so? Because ये word आपने पहली बार अपनी लाइफ में कब सुना है? In perspective of class, standard 1, standard 2, standard 3, standard 4 and so on. My dear friends, स्टैंडर्ड ये वर्ड आपको बताता है एक लेवल. यस, नया वर्ड मिला है. अभी तक मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, बेंचमार्क, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. स्टैंडर्ड का तीसरा मतलब हो गया द वर्ड लेवल. ये वर्ड आपको बताता है कि क्या होना चाहिए. तो कुछ लोगों ने अपने फील्ड में स्टैंडर्ड सेट किया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज रनिंग वेरी फास्ट, तो हम उसे कहते हैं, अगर लड़की है तो पीटी उषा की तरह भाग रहे हो. और इफ इट्स अ गाय, सो वी से हिम दैट आर यू मिल्खा सिंह, सो यू आर रनिंग सो फास्ट. If someone is playing very good cricket, so we immediately compare him with Sachin Tendulkar. If someone is a fabulous singer, we immediate comparison with Lata Mangeshkar, Sunidhi Chauhan, or Shreya Ghoshal, or any of those people. Why is it so? Because these people have set it some level, a benchmark, a point of comparison in their fields. Now everyone other in that field is compared with that point of comparison. This is the meaning of the word standard. Now, how do we interpret standards, this word, for the perspective of accounting? So, यहाँ standard एक benchmark अगर आपने set किया है, तो benchmark के लिए आपको बनाने होते हैं कुछ rules. तो यहाँ पे ये word standard का meaning होगा rules. The rules for accounting. और ये rules क्यों चाहिए हमें? Why do we need these rules for accounting? दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये chapter एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट के लिए पढ़िएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आगे जाके एक एक्सटेंसिव सिलेबस होगा इन इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो व्हाई डू वी नीड दीज रूल्स? ये हम ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा. व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाई डू वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? Because of one foremost biggest objective, and that objective is comparability. We want to do inter-firm comparison. What do you mean by inter-firm comparison? Comparison of one company with another company is known as inter-firm comparison. So if Tata Motor is comparing its performance with Hyundai or Honda, that is known as inter-firm comparison. And second is for intra-firm comparison. What do you mean by intra? Intra, this word means within. So within your organization you need to do some comparison. So in my organization I want to compare my profitability of the current year as compared to the previous year. I want to compare my profitability of one location with another location, that's known as intra-firm comparison. And now you'll ask me that, sir, why do we need this comparison?
ये कंपैरिजन की जरूरत क्या है? बिकॉज कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन क्रिएट्स competition, the competitiveness environment, and that competitive environment is always good for growth. And let me tell you, in terms of economics, it's the consumer who gets benefit of this competition. Let's take an example. Long back there used to be only and only one airline, Air India or the Indian Airlines. It's another segment. Now they were in monopoly. Whatever they were doing was to be accepted by the customers because there was no other choice available. High pricing, maybe not the quality of the service what customers are looking for, and all these were some common observations. But now you see, after privatization what has happened, ये सारी प्राइवेट कंपनीज अब एयरलाइन इंडस्ट्री में आ गई है. तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं. देयर इज जेट एयरवेज, देयर इज स्पाइस जेट, देयर इज इंडिगो, देयर इज गो एयर, देयर इज Tata and Singapore Airlines joint venture Vistara, there's Air Asia. So many airlines are now there in India, and now you see because of this there is a cutthroat competition in the market. तो अगर किसी एक ने ऑफर लॉन्च किया है कि एयर टिकट्स सेल 999 रुपीज लिमिटेड पीरियड सेल, तो आप देखो कि 2 घंटे बाद दूसरी एयरलाइंस का सेम ऑफर आएगा. क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको सस्टेन करना है तो आपको डिसीजन सिर्फ खुद को देख के नहीं लेना होता है. यू हैव टू ऑल्सो टेक डिसीजन समटाइम्स. इनफैक्ट योर डिसीजंस मेनी टाइम्स आर ड्रिवन बाय योर कॉम्पिटिटर. वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में ही ग्रोथ होता है. और आप अगर देखोगे इसमें सबसे ज्यादा फायदा बेनिफिट किसका होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कंज्यूमर का. तो अगर एक ने सर्विस अच्छी नहीं दी तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, वो दूसरे के पास जाएगा, और उसको पता है कि अगर उसने भी सर्विस अच्छी नहीं दी तो कंज्यूमर उसको भी छोड़ के तीसरे के पास जा सकता है. इन मॉडर्न एरा, आज के जमाने में, पीपल डोंट माइंड पेइंग. परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज्ड. लोगों के पास बहुत पैसा है, ताकत बढ़ गई है लोगों की. People don't mind paying. All they want is good quality and service. That is very very important. So my dear friends, comparison of financial statements is done for competitiveness. और ये comparison कब होगा? How can you say that two things are comparable? तो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देता हूँ, समझिएगा. Suppose it's your CA foundation result today. सपोज कह रहा हूँ, इट्स योर CA फाउंडेशन रिजल्ट टुडे. तो आपकी मार्क्स है, आपके टेस्ट है 400 मार्क की टोटल एग्जाम, एंड से फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट 210 आउट ऑफ 400. आपको इससे ज़्यादा मिलेंगे, बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ. 210 आउट ऑफ 400, दैट मीन्स इट इज 52.5%. ओके, सो यू गो टू योर मदर एंड यू से, मम्मी मैं पास हो गया हूं CA फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड योर मदर आस्क्स व्हाट इज योर स्कोर, एंड यू से लुक एट दिस, माय स्कोर इज 210 आउट ऑफ 400, दैट इज 52.5%. एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर ऑन क्लाउड 9 बिकॉज यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा दिन होता है, एक पड़ाव पास हो गया आपका. आपका एक छोटा भाई या बहन वो वहीं पे खड़ी होगी और वो ये पूरा कन्वर्सेशन सुन रही होगी, और हाँ उससे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर ये चीज समझ में आई होगी कि भैया को 52.5% मिले. शायद अगर उस दिन उसका भी रिजल्ट लगा होगा, जो स्टैंडर्ड 2, 3, 4 में पढ़ रही होगी या पढ़ रहा होगा, तो वो आती है आपकी मम्मी के पास और कहती है, ये देखो मम्मा मेरा रिपोर्ट कार्ड, और मुझे यहाँ 90% मिले हैं. And then he or she will start teasing you. Oh भैया आपको सिर्फ 52.5 मिले और मुझे 90% मिले. He'll be very happy. बच्चा है यार, उससे कहाँ समझ में आएगा CA क्या होता है. He'll be very happy कि हाँ मुझे मेरे भैया से ज्यादा मिला है, मुझे 90% मिला और भैया को 52.5% मिला है. चलो बच्चा है, खुश होने देते हैं.
बट टेल मी वन थिंग, जब वो वहां से चला जाएगा, डू यू थिंक कि आपकी मम्मी आपको ये कंपैरिजन करके डांटेगी कि आपके छोटे भाई को 90% मिले और आपको 52.5 क्यों मिले? डू यू एवर थिंक ऐसा होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी मम्मा को पता है कि ये दो कंपेरेबल नहीं है। How can you compare a standard 234 result with that of CA foundation result? बस 234 स्टैंडर्ड में तो 80-90 के नीचे किसी को मिलते ही नहीं। आज एग्जाम दिलवा तो अभी लेके आ जाए 90%, लेकिन फाउंडेशन में हर कोई पास होता ही नहीं है। तो आप पास हो गए हो, यही खुशकिस्मती की बात है। 210 मिले आपको 400 से। अरे बड़े लोग कह गए हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, जरा नीचे वालों को देखो तो सही। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एग्जाम तो दी है पर पास नहीं हो पाए हैं। ये कंपैरिजन प्रॉपर नहीं है, ये आपकी मम्मा समझती है और दोस्तों इसलिए वो आपको डांटेगी नहीं, लेकिन आपको पता है कुछ और होगा, कुछ और होगा। और क्या होगा समझिए, जैसे ही आपका छोटा भाई या बहन वहां से निकला ना, आपकी मम्मा आपसे इमीडिएटली दूसरा क्वेश्चन पूछेगी। और क्या क्वेश्चन पूछेगी? ध्यान से सुनना, सबके साथ हुआ होगा, ये मदर सेम होते हैं, सबके साथ हुआ होगा। आपकी मम्मा आपसे पूछेगी, अच्छा बेटा अंशुल ये बता, तुझे 210 मिले, वो तेरे साथ तेरा एक दोस्त पढ़ता था ना, जो तुम लोग साथ में एक ही गाड़ी पर ट्यूशन जाते थे, उसको कितने मार्क्स मिले अब बता। हाँ, अब आप कहते हो कि हाँ माँ उसको 240 मार्क्स मिले। नाउ उसको 240 दैट इज 60%, तुझे 210 दैट इज 52.5%। नाउ डू यू थिंक दैट योर मदर विल compare these two results? And the answer is yes. Why it is yes? Because they are uniform. You can't compare a second, third, fourth standard result with that of CA foundation result, but can you not compare one result of CA final with another result, or one result of CA foundation with another result of CA foundation? And answer is yes, my dear friends, yes. This is the appropriate comparison. तो अब यहां समझो कंपैरिजन कब होगा। कंपैरिजन के लिए जरूरी है यूनिफॉर्मिटी। अगर कोई दो चीजें यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी ना, तो ही कंपैरिजन हो सकता है, नहीं तो कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। और यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या जरूरी है कि जो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है वो लोग सेम सेट ऑफ रूल्स अपनाएं। सो इफ आई वांट टू डू इंटर-फर्म और इंट्रा-फर्म कंपैरिजन, I need to ensure that everyone is preparing financial statements under same assumption. And to ensure that, I need to first ensure that everyone should do accounting also under the same assumption. और वो कब होगा? वो तब होगा जब अकाउंटिंग के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, हम सुबह उठते हैं, सुबह से रात तक हम दिन भर रूल से घिरे हैं, हर जगह किसी ना किसी के रूल्स को हम फॉलो ही करते जा रहे हैं। तो जब हम उठते हैं, हम हमारे घर में होते हैं, हम हमारे पापा के रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करो वो करो, ये चीज़ वहाँ रखो, वो चीज़ वहाँ रखो, ये इतने बजे के पहले घर पे आना चाहिए, ये हमारे डैड के पापा के रूल्स है जो हमें फॉलो करना है। हम घर से, हमारे फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो हमें सोसाइटी के रूल्स फॉलो करना है। Park your vehicles in the designated parkings only. Don't keep dustbins here. Don't keep footwears there. ये don't litter here. Don't do this. किसी और के घर के सामने ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। So many rules. हम हमारी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं रोड पे तो आरटीओ के रूल्स है ना, आरटीओ के रूल्स, नो पार्किंग, वन वे, टू वे, 4 व्हीलर्स ओनली, 2 व्हीलर्स ओनली, ड्राइव फ्रॉम लेफ्ट साइड, स्टैंड बिहाइंड जेब्रा क्रॉसिंग, लुक एट द ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स एंड सो मेनी रूल्स। हम आते हैं एकेडमी में तो एकेडमी के रूल्स, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के रूल्स,
क्या हमारे खुद के कहीं कोई रूल्स नहीं चलते हैं? अभी तो नहीं। हाँ चलते हैं हमारे रूल्स। अगर हमारा घर में अलग रूम है तो रूम में, और नहीं तो हमारे बाथरूम में, दैट्स ऑल। और कहीं हमारे रूल्स नहीं चलते हैं। बस वही एक ऐसी जगह है हमारा रूम। देखो पहुंचे रूम में, जहां कपड़े निकाल के फेंकने फेंके, बैग फेंकना है फेंका, बुक्स पड़ी है, हमारा बेड फुल ऑफ क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। बस हमारा ये 6-6.5 फीट का जो भी बॉडी है उसे फिट करने जितनी जगह हम बेड पे रखते हैं, बाकी इट्स ऑल मेस्ड अप। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां हमारे रूल्स चलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सभी अकाउंटिंग एक जैसी करें, तो किसी को तो आगे आके इसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। और वो रूल्स कौन बनाएगा? हु विल प्रिपेयर दोज रूल्स? तो वो रूल्स बनाने का काम हर कंट्री ने दिया अपनी अकाउंटिंग बॉडी को। सो आई बॉट अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू ओवर हियर, व्हिच आई बॉट आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये पॉइंट पूरी दुनिया के सामने आया कि अकाउंटिंग को हार्मोनाइज करना चाहिए, अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म करना चाहिए, और अकाउंटिंग के लिए सेट ऑफ रूल्स बनने चाहिए। बिकॉज अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं सेल्स ऑफ वन कंपनी विद सेल्स ऑफ अनदर कंपनी, तो मुझे ये कंपैरिजन करने से पहले यह देखना चाहिए कि क्या दोनों का सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है या नहीं। अगर वो दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है, दैट कंपैरिजन इज नॉट एप्रोप्रिएट। एक एग्जांपल देता हूं। Can we compare percentage with percentile? Now what do you mean by percentile? तो दोस्तों कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। जिसको नहीं पता या पता भी है, डोंट वरी, आई विल टेल यू। हाउ डू यू कैलकुलेट योर परसेंटेज? समझिएगा। सो यू कैलकुलेट बाय टेकिंग योर स्कोर ऑन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय total score multiplied by 100. How do you calculate percentage? Your score divided by total score multiplied by 100. How do you calculate percentile? Understand, you calculate percentile by your score divided by, or I'll say first topper's score multiplied by 100. Now suppose if you take up any value in these two formulas, suppose your score, let's take an example, is 90 out of 100 into 100, your percentage will be 90%. But if the topper is at, let's say example 95 into 100, 90 upon 95 into 100, is it going to be 90%? No, my dear friends, it's not going to be 90%. It's going to be much beyond 90%. It will be approximately 94 to 96%. Now my point is, how can you compare 94% with 96%? That's an absolutely inappropriate comparison. तो ये कंपैरिजन प्रॉपर कब होगा? जब यूनिफॉर्मिटी होगी। तो आप अगर दो कंपनी का सेल्स, दो कंपनी का प्रॉफिट कंपेयर कर रहे हो, तो पहले आपको यह देखना जरूरी है कि उनका कैलकुलेशन का मेथड यूनिफॉर्म है या नहीं है। और वो कैलकुलेशन का मेथड यूनिफॉर्म कब होगा? वो तब होगा जब दोनों एक सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और वो सेम सेट ऑफ रूल्स कौन बनाता है? तो वो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ एनी कंट्री। तो मैंने यहाँ पे बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए एक टेबल बनाया है, दिस शोज यू द इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ यू कैन टर्न टू द पेजेस ऑफ योर क्लास बुक टू दिस पर्टिकुलर पेज। और अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो पार्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं, this part shows you the international scenario, not the Indian scenario, whereas this part, the lower part of this diagram shows you the Indian scenario. तो हम सबसे पहले देखते हैं international scenario. So internationally
there was a committee known as IASC, Accounting Standard Committee, which was formed in June 1973. जून 1973 में एक कमेटी बनी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स बनाए जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो ये बने थे जून 1973 में और ये वैलिड है आज भी, बट प्रोमिनेंटली ये मोनोपोलिटिक थे टिल अप्रैल 2001. नाउ इन 1997 ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी में कुछ बदलाव हुआ. दे वेंट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड दिस IASC हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड एज IASB, which stands for इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. और फिर ये बोर्ड ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हुआ क्या था, इन द ईयर 2000-2001 क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैव इंक्रीज्ड significantly. Companies started investing overseas. So Indian companies started investing abroad. Foreign companies started investing in India. अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया इन कंपनीज ने तब जब उन्हें अलग अलग कंट्री में अलग अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होता था. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी कोको-कोला or a Domino's, which is a US based company. When they are doing business in US, that is their originating country, there they were following US GAAPs, that is the accounting standards of USA for those financial statements. When they are doing business in India, they are following Indian accounting standards for the financial statements of India. When they are doing business in Australia, they are following Australian accounting standards for those financial statements. Now the problem that was happening was while consolidation. Yes, एक नया वर्ड देखा है आपने, consolidation. When you say total sales of Coca-Cola or total sales of Domino's, it means what? It means sales made by these companies in all the countries over the globe. और उसको हम मिला के बना के मिक्स करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं दोस्तों, और उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यस, ये आपको पढ़ना है इन इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग, जहां मैं आपको ये पढ़ाता हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस पे बेस्ड है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS21. अगर कभी आपको समय मिले और आप थोड़ा बहुत समझना चाहो, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, हाँ दोस्तों, कि आज इस पॉइंट पे भी आप इसे समझ पाओगे. जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल, विजिट माय चैनल एंड वॉच अ वीडियो ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दोस्तों, प्रॉब्लम होती है कंसोलिडेशन के समय. तो अब कोको कोला को कैलकुलेट करना है उसका ग्लोबल सेल्स, पूरी दुनिया का उसका सेल्स क्या है, तो उसे चाहिए सेल्स. ही हैव टू सम अप द सेल्स ऑफ US, UK, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, एवरीवेयर. अब हर जगह अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, और इसे कंसोलिडेट कैसे किया जाए. तो ये ऐसी सारी कंपनीज ने अप्रोच किया IASC और IASB को कि यार ये बहुत कम्बरसम हो रहा है, हम बिजनेस पे फोकस करें या अकाउंटिंग ही करते रहें. हर कंट्री ने अपने अलग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं. इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. IASB has conducted a meeting of all the accounting bodies of the world, and everyone have echoed the same voice. सबने एक ही चीज कही कि हाँ, हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी कंप्लेन कर रही है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के केस में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो क्या किया जाए. तो स्पेशली यूरोप एंड UK एंड US अकाउंटिंग बॉडीज ने कहा कि लेट अस डू वन थिंग, लेट अस डेवलप वन सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा. आइडिया सबको अच्छा लगा कि इंस्टेड ऑफ हैविंग सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी कंट्री, क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरी दुनिया के लिए एक ही सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाए और उसे ही
पूरी दुनिया में यूज किया जाए। ऐसा होगा तो कितना अच्छा। मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थॉट वाज यूनिफॉर्मिटी which will enhance the comparability and give some relaxation to the business community. थॉट बहुत अच्छा था। 2000 ईयर में ये थॉट आया ऑन द टेबल। दिस थॉट वाज डेवलप्ड, और डेवलप करके ड्राफ्ट्स बने, डिस्कशंस हुए, मीटिंग्स हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ ISB। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के लोगों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, और फिर इन अप्रैल 2001 एक नया स्टैंडर्ड बन के बाहर आया जिसने IAS को जगह लेने की कोशिश की, और उस स्टैंडर्ड का नाम था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। बहुत चर्चा में रहा, बहुत डिस्कशन हुआ इस पे, बहुत कहते ना हेडलाइन बनी ये चीज की, IFRS आ रहा है, IFRS आ रहा है। अप्रैल 2001 से IFRS आ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी को लगा कि यस, शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। हर कंट्री में एक ही आवाज थी, IFRS, IFRS, IFRS। सभी कंट्रीज के अकाउंटिंग बोर्ड बॉडीज ने अपने बिजनेस कम्युनिटी से कहा कि हम आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि हम IFRS ला रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने प्राइमा फेसी दे हैव वेलकम दिस मूव in India when IFRS came. Things were bought with incomplete preparations. Without proper training, without proper guidance, without proper professionals having expert knowledge of this subject, IFRS, this concept was bought in India. और फिर हुआ क्या? हुआ डिले। अप्रैल 2001 में इंप्लीमेंट होने वाला IFRS, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमारी मशीनरी अभी तैयार नहीं है, हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है जो गाइड कर सके। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऐसे थे जिनके पास नॉलेज नहीं था IFRS का। एक्चुअली स्पीकिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ICI का, उसके मेंबर्स के अलावा किसी को पता नहीं था IFRS होता क्या है। CA इंस्टीट्यूट ICI ने बहुत कोशिश की, अलग अलग जगह सेमिनार्स लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे, CPE प्रोग्राम्स रखे। उन्होंने अलग अलग तरीके से मेंबर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, IFRS को सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स रखे, डिप्लोमास लॉन्च किए। उधर लंदन से ACCA ने बहुत कोशिश किया, AICPA ने बहुत मेहनत की कि IFRS को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, पर कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग और लैक ऑफ द प्रॉपर पीपल हु कैन गाइड द बिजनेस कम्युनिटी ऑन IFRS, अप्रैल 2001 से इंप्लीमेंट होने वाला IFRS डिले होता गया। 2002, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हमारी बिजनेस कम्युनिटी हैरान परेशान कि हमें तो लगा कि इससे हमारी लाइफ सिंपल होगी, पर ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अच्छा खासा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे भाई, ये क्या आ गया? क्योंकि हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, ऑडिटर के पास जाते हैं, तो उसको खुद को भी अभी IFRS के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो हम इसे क्या करें, क्या किया जाए? दे अगेन स्टार्टेड कंप्लेनिंग द अकाउंटिंग बॉडीज। बिजनेस कम्युनिटी अगेन गॉट यूनाइटेड एंड दे कंप्लेन देयर अकाउंटिंग बॉडीज के बॉस, what was expected is not what's happening। जो सोचा था, जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन थी कि IFRS आने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ऑन दी कॉन्ट्रेरी हमारे प्रॉब्लम्स तो बढ़ गए बॉस। क्या करें हम ये IFRS का? आपके पास प्रोफेशनल्स नहीं है जो हमें बता सके IFRS होता क्या है, और जो है थोड़े बहुत वो इतना चार्ज कर रहे हैं कि कन्वर्जन टू IFRS के लिए हमें इतना पे करना पड़ रहा है जितना हमें बिजनेस से कमाई नहीं हो रही है। हम नहीं कर सकते, ये कैसे करेंगे हम? एंड अगेन द सेम वॉइस वाज इकोड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट कपल ऑफ कंट्रीज, प्रोमिनेंटली UK, US कंट्रीज, बिकॉज ये जो IFRS बना था इट वॉज मोर ओवर डोमिनेटेड बाय दीज कंट्रीज। तो उनके लॉज में कोई खास चेंज नहीं हुआ था। जो ये चेंज हुआ था, जो मेजरली अफेक्ट कर रहा था, वो अफेक्ट कर रहा था ये सारी कंट्रीज को, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज को, जहां पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है। तो 2004 तक डिले होने के बाद
IASB वापस मिला। IASB ने वापस मीटिंग की सारे कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ। तब इंडिया में क्या था ये देखिए, तो इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल 1977, यस यू हर्ड मी करेक्ट, 21 अप्रैल 1977 में एक अलग कमेटी बनाई, एक अलग बोर्ड बनाया जिसका नाम था ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू प्रिपेयर the accounting standards in India. So on the lines of international accounting standards in India, they prepared some set of standards which were known as AS or accounting standards, which were implemented in 1977 and they are as of now present till now. But हुआ ये कि बीच में ये जो ट्रांजिशन फेस आया जहां सभी को अपने कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज करके IFRS फॉलो करना था, तो सबने कंप्लेंट्स की। तो ASB जो भी एक मेंबर है IASB का वहां गया और उनसे मिला, तो वहां उन्होंने कहा, सभी कंट्रीज से बात की और सबका ये सोचना रहा कि यार इट्स नॉट वर्किंग, जैसा होना चाहिए था ऐसा हो नहीं रहा है, जिस डायरेक्शन में इंप्लीमेंट होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। They actually sat and discussed what are the causes of this, what are the reasons of this. तो उन्हें समझ में आया कि lack of proper professionals or the number of professionals required, looking at the quantum, is one of the single most biggest reason. We don't have manpower who are trained well in IFRS or who can actually help out people for IFRS. So this rolling out was a big failure. तब क्या किया जाए? ये मीटिंग में US UK चुप था। लॉजिक इज वेरी सिंपल, US और UK के स्टैंडर्ड्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं था। IFRS was actually 70, 80 or I can even say 90% adopted from US gaps. So for them it was absolutely comfortable. There was no change. The main problem was suffered by African and Asian countries where their economic environment is very different. तो सभी ने कहा, वियतनाम ने कहा, चाइना ने कहा, इंडिया ने कहा कि यूएस और यूके के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे बेस्ड ये जो IFRS बना है ये इंडियन सिनेरियो में सूटेबल नहीं हो रहा है, कर ही नहीं पा रहे। हमारी कंट्री अलग है, हमारे यहाँ बिजनेस करने का तरीका अलग है, ट्रांजैक्शंस अलग टाइप के होते हैं, बिजनेसमैन अलग होते हैं, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है, बैंकिंग सिस्टम अलग है। वी कैन नॉट यूज देम एज इट इज इन इंडिया। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, नहीं कर सकते। आपका फाइनेंशियल ईयर अलग, हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर अलग, किसी और कंट्री में कुछ और, कैसे यूज करें हम? ये प्रॉब्लम आई ऑन द टेबल ऑफ IASB एंड देन माय डियर फ्रेंड्स एक नया थॉट आया। If not complete, then to the maximum possible extent use IFRS, और जितना IFRS आपके कंट्री में एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उतना आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी एक नया थॉट सामने आया टेबल पे कि लेट अस यूज कन्वर्ज्ड वर्जन ऑफ IFRS। देखो नया वर्ड मैंने बताया आपको, क्या कहा मैंने? लेट अस यूज दी कन्वर्ज्ड वर्जन ऑफ IFRS। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ज्ड वर्जन? IFRS यही है, इसे आप लेके आओ अपनी कंट्री में और देखो कि आपकी कंट्री में ये कितना सूट होता है। जितना सूट होता है उसे एज इट इज रखो, जो सूट नहीं होता है, जो पोर्शन सूट नहीं होता है उसे चेंज करो, और वो जो चेंज्ड वर्जन होगा IFRS का, दैट IFRS विच इज ट्रांसलेटेड और विच इज आई कैन से मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसके बेसिस पे आप कोई नए स्टैंडर्ड्स बनाइए और वो स्टैंडर्ड्स आपकी कंट्री के लोग फॉलो करेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंटली इन 2006 new set of standards were issued by ICAI. They are known as Indian Accounting Standards, abbreviatively IND-AS. So you can see this diagram.
तो थोड़ा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और थोड़ा IFRS, और इन दोनों को मर्ज करके ये जो यहाँ पोर्शन आप देख सकते हैं कॉमन पोर्शन, दिस इज नथिंग बट योर इंड AS। तो थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले और रास्ते में हम दोनों मिल जाएंगे। तो यस, बहुत डिफिकल्ट था यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज के लिए ये एक्सेप्ट करना कि हाँ अब उनका स्टैंडर्ड ना यूज होके कोई तीसरा स्टैंडर्ड बनने जा रहा है। बहुत डिफिकल्ट था बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्ट करना। लेकिन दोस्तों, लुकिंग एट द सिचुएशंस प्रिवेलिंग एट प्रेजेंट, हम सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अपने लिमिटेशन है। हम पूरी तरह IFRS फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है। एंड देयरफॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया थ्रू इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 2006 has taken an initiative to come out with a new set of standards known as IND AS, and therefore my dear friends, consequently आज की डेट में इंडिया में दो टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। वन इज नॉर्मल AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स and another is IND AS, which is Indian Accounting Standards. And what is this Indian Accounting Standards? It is the converged, what has written used word here? Converged version of IFRS. Converged means what? Those IFRS which are modified based on your requirement, your economic environment. It is known as the converged version of Indian Accounting Standards. Correct? So my dear friends, आज की डेट में ग्लोबली दो टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं, IND AS एंड IFRS, और इंडिया में जो दो स्टैंडर्ड्स हैं वो है AS एंड IND AS। करेक्ट? सो दोस्तों, ये है पूरा बैकग्राउंड। ये इतना रिसर्च आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये रिसर्च मैंने किया था while my tenure of diploma in IFRS from ACCA London. So while doing that diploma of IFRS from ACCA London, I got to know about this insight. So some research from that side, some my own research, and as a result of this, I brought up this fantastic diagram in front of you to explain you globally what is the history and evolution of accounting standards. So right now, guys, our scope at CA foundation level is we are going to just see a pinch of IFRS or a pinch of accounting standards over here. AS, I'm not talking about IND AS, but yes, going forward when you promote to intermediate, you will have to not only see AS, will also have to deal with IND AS and to a certain extent IFRS also, because CA final you have to deal with all the four things: IAS, that is International Accounting Standard; IFRS, that is International Financial Reporting Standard; AS, that is Accounting Standards; and IND AS, that is Indian Accounting Standards. Correct? Now, before we proceed ahead, it's very important for me to first tell you something about this ASB or the Accounting Standard Board. ये ASB से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखना है। वेल, आपके क्लास बुक में सब कुछ दिया है और मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इट्स रिटन, इट्स प्रिपेयर्ड सो फैंटास्टिकली कि आप एक बार पढ़ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यस, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अ लॉट। Even this video can be used by intermediate as well as CA final students, because when you are sitting to study all these four things at final level, you need to have some kind of background there in front of you, that what is the basic sense of difference between these four things, what is applicable in international scenario and what's applicable for Indian scenario. So this video is very helpful for the final students too. Now for ASB, what points we have to see over here is, we are going to first see what are the roles and what is the responsibility of ASB. दूसरी चीज हमें देखना है कि what is the composition of ASB, और तीसरी चीज हमें यहां पे देखना है what is the standard setting process, कि एक नया स्टैंडर्ड बनता कैसे है या एक पुराना स्टैंडर्ड रिप्लेस कैसे किया जाता है या उसे मॉडिफाई कैसे किया जाता है। सो अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, एट फाउंडेशन लेवल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है,
पर ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि आपके लिए आपकी आने वाली जर्नी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो कि फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में होगी, वो स्मूथ हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हो. आई कैन से इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो इससे पहले आप ये पढ़ने जाओ, आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए. So let us see what are the roles and responsibility to accounting standard board. So जैसा मैंने आपसे कहा, accounting standard board you can see is formed on 21st April 1977. What are the roles and responsibility of accounting standard board? Accounting standard board की roles और responsibility में है सबसे पहली चीज to identify the area where you need to formulate or you need to prepare रूल्स फॉर अकाउंटिंग. तो आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे अकाउंटिंग के लिए रूल्स बनाने की जरूरत है. इन शॉर्ट, ऐसा कोई एरिया है जहां पे बिजनेस कम्युनिटी की एम्बिग्यूटी हो रही है. समवन इज सेइंग एक्स, समवन इज सेइंग वाई, एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन. तो आपको वहां आगे आना है और आपको एक मेंटोर का रोल प्ले करना है. सो यू हैव टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑन इट. नंबर 1. नंबर 2, आपको देखना है कि कहीं किसी एक सब्जेक्ट पे 2 स्टैंडर्ड तो नहीं बने या मल्टीपल स्टैंडर्ड्स तो नहीं है. अगर ऐसा है तो आपको उन्हें मर्ज करना है. समझ में आ रहा है? देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेशन. हम अभी देखेंगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पहले था ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, एंड देयर वाज अ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट, दैट इज AS 10. अब आप खुद देखिए, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है. तो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने क्या किया? दे हैव रिमूव्ड AS6, विड्रॉन AS6, एंड व्हाट दे डिड, दे मर्ज्ड दोस पैराग्राफ ऑफ AS6 ऑन डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. सो दिस इज अगेन अनदर स्कोप एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ASB. नंबर 3, डिलीशन ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ इट्स एन ऑब्सोलीट, आउटडेटेड अगर कोई स्टैंडर्ड है जिस पे किसी की जरूरत नहीं है तो आपको उसे डिलीट करना है. सो इन अ नटशेल यू हैव टू बी अ वॉचडॉग. आपको ध्यान रखना है सोसाइटी में, आपको देखना है कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है क्या वो सही तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो आपको एक एडिशनल चीज इशू करना है जिसको हम कहते हैं ASI, और ASI का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन. ये तब इशू होता है जब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई वर्ड क्लियर ना हो, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट पब्लिक इज टेकिंग, मैनिपुलेटिंग दैट वर्ड टू द बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट. सो ASB comes out with some interpretation known as ASI. अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उसका ऑब्जेक्टिव इंटेंट अचीव करने के लिए कुछ एडिशनल सप्लीमेंट की जरूरत है, the ASB can come out with a guidance note, GN. सो दोस्तों, ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ASB. ASB बनता किन लोगों से है? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ASB? अब ये कॉम्पोजिशन जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अफेक्ट किस किस को करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन सब लोगों को अफेक्ट करते हैं ना, वो सब लोगों का स्टैंडर्ड बोर्ड में होना, प्रेजेंस, नॉमिनेशन जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कोई नया तरीका बताया टू कैलकुलेट सेल्स, और वो तरीके के बेसिस पे आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, और वो नेट प्रॉफिट कम होने से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है. अब अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द इनकम टैक्स ऑफिसर और दिस हायर अथॉरिटी, दैट इज द CBDT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. CBDT को एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो आपको नहीं लगता कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? डोंट यू थिंक सो कि जब कोई नया स्टैंडर्ड बने तो उन लोगों से बात होनी चाहिए, उन लोगों की भी कंसेंट होनी चाहिए जो इसे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं? एंड द आंसर इज यस. सो यहां मैंने आपको पेज 52 पे एक लिस्ट दी है ऑफ कंपोजिशन ऑफ ASB. लेट अस सी. यू हैव the composition of ASB is fairly broad based and ensured participation of all interest groups in the standard setting process.
अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAI, तो ICAI का जो काउंसिल होता है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो तो ASB के मेंबर्स होते ही हैं, उसके अलावा फॉलोइंग नॉमिनेशंस आर देयर, फॉलोइंग पीपल्स आर देयर रिप्रेजेंटिंग देयर बॉडीज. यू हैव a nominee from Department of Company Affairs or MCA. Ministry of Corporate Affairs, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन होता है. You have representation from the Office of the Comptroller and Auditor General of India, CAG. कौन होता है ये CAG? तो जो गवर्नमेंट कंपनीज का या गवर्नमेंट का ऑडिटर होता है वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. यू हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम CBDT एंड यू ऑल्सो हैव a representation from, you can check over your next page, CBEC. Now what do you mean by CBDT? Well, this is the part of intermediate, but मैं आपको कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके नीचे होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट, जो सब पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, टैक्सेशन, रेवेन्यू, फेडरल और दोस थिंग्स. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दो पार्ट्स है, दो विंग्स हैं. एक का नाम है CBDT, दूसरे का नाम है CBEC. CBDT डील्स विद डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBEC deals with indirect taxes. Central Board of Direct Taxes, this is the wing of Ministry of Corporate Affairs which deals with direct taxes like income tax. Direct tax means they are those tax where the burden of tax is to be borne by the taxpayer, and indirect tax are those tax where the burden of tax is transferred to the ultimate consumer, like the biggest and the revolutionary goods and service tax, that is GST. So इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है. There is representation of Institute of Cost and Works Accountants of India. अब इसका नाम बदल के हो गया है Cost and Management Account of India, but abbreviation वही है जो हमारा है ICAI. There is representation of Institution Companies Secretaries of India, ICSI. There is representation of industry associations like CII, ASSOCHAM, etc. There is representation from Reserve Bank of India. There is a representation from Securities and Exchange Board of India. ये सब चीज़ों पे इफेक्ट होता है. There is representation from CGA. Now what is the difference between CGA and CAG? CGA गवर्नमेंट अकाउंटेंट होता है, जो गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करता है वो होता है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जबकि CAG होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. There is representation of academic institutions like universities, IIM. There is representations from financial institutions if there are any other eminent professionals or other representations. So my dear friends, आप देख रहे हो कि accounting standard board ऐसे ही नहीं बनता है. Comprises of absolutely mastermind peoples over there, peoples who are gems, who are pearls of their oyster. अपने फील्ड में जो मास्टर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं. तो ऐसे ही कोई स्टैंडर्ड नहीं बनता है. ये स्टैंडर्ड यहाँ पे भी नहीं बनता है. ये स्टैंडर्ड यहाँ ASB से पास होने के बाद जाता है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट के पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाता है और वहाँ से इसका अप्रूवल आता है और फिर बाद में ये स्टैंडर्ड बनता है. करेक्ट. तो हमें तीन चीज़ें देखनी थी. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम देख चुके हैं, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ASB जो हमने देखा है, एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. अब ये स्टैंडर्ड बनता कैसे है? हाउ डू यू प्रिपेयर अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 54. मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझिए. और आप यहाँ देख रहे हो मैंने आपको बोल्ड करके दिया है. यही सारी चीज़ें मेरे एक्सप्लेनेशन में भी आपको मिलेगी. करेक्ट. मैं पहले ही उसे हाईलाइट कर देता हूँ.
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले लेक्चर से मैं आपको कहता आ रहा हूँ, हाइलाइटर्स, रेड पेन्स, ये सब हमारे वेपन्स हैं. सो वेन एवर यू आर सिटिंग टू स्टडी एनीथिंग, प्लीज इंश्योर दैट यू डू हैव all the highlighters and all with me. My only purpose to project my book over here is so that मैं आपको सिर्फ कंटेंट ना पढ़ाऊँ, मैं आपको ये भी पढ़ाऊँ कि पढ़ते कैसे हैं. करेक्ट. तो एक स्टैंडर्ड बनता कैसे है? तो सबसे पहली चीज होती है डिटरमिनिंग अ ब्रॉड एरिया, कि किस एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है. तो अलग अलग एरिया डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स, ये वो. जैसे आजकल आप देख रहे हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग कंसेप्ट चल रहा है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गोल्ड लोन. तो जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना. तो ऐसा आपने कंसेप्ट देखा होगा, टीवी कमर्शियल्स देखे होंगे, एड्स देखी होगी. तो दोस्तों यस, नया कंसेप्ट है कि आप घर में पड़ा हुआ सोना लेके आइए और आपको उसके बदले लोन मिलेगा. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंटिंग की जरूरत है. तो करंटली इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ऑन दिस डायरेक्शन टू फॉर्मुलेट न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन गोल्ड लोन. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की मीटिंग होती है जहाँ पे उस एरिया पे डिस्कशन किया जाता है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, दे ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन. हिडन रूल है, पहले प्रॉब्लम मिलेगा तो उसका सोल्यूशन मिलेगा. और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की मीटिंग चल रही होती है तब कुछ लोग साइड में बैठ के इस मीटिंग को सुन रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं. दे कैन लिसन टू इट बट दे कैन नॉट स्पीक, एंड दे आर नोन एज स्टडी ग्रुप्स. ये स्टडी ग्रुप्स क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में डिस्कशन चल रहे हैं उससे कुछ रफ स्क्रिबल नोट्स बनाते हैं, और ये मीटिंग होने के बाद वो एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाते हैं. प्रॉपर लिखा जाता है जो भी पॉइंट्स है, एक प्रोसेस बनाई जाता है, एक फ्लो बनाया जाता है, और एक कुछ तो डॉक्यूमेंट सामने आता है आउट ऑफ दैट डिस्कशन. दिस ड्राफ्ट इज देन प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ ASB, और फिर अब ASB उस ड्राफ्ट पे करता है डिस्कशन. जरूरी नहीं है ड्राफ्ट के सारे पॉइंट एक्सेप्टेबल हो, कुछ मिसिंग हो सकते हैं, कुछ ऑब्सोलीट हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, तो उन्हें चेंज किया जाता है, करेक्ट किया जाता है और नया ड्राफ्ट बनता है. तो अगेन स्टडी ग्रुप वहीं बैठा होता है. स्टडी ग्रुप देखता है कि ड्राफ्ट नंबर 1 में क्या क्या चेंजेस है, एंड अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट नंबर 2 में वो चेंजेस होते हैं. और उसके बाद आफ्टर दैट दे कम आउट विद द सेकंड ड्राफ्ट. अगेन द ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड इन द मीटिंग ऑफ ASB ऑन विच देयर इज एन एक्सटेंसिव डिस्कशन. And consequently drafts comes on, discussion goes on, debate goes on, and then when the ASB feels that yes, now we got a crystallized draft, that draft is released for public exposure known as ED or exposure draft. अब ये ड्राफ्ट को सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भेजा जाता है, या जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हें भेजा जाता है फॉर देयर कमेंट्स. कि अभी तक ये ड्राफ्ट पे डिस्कशन हो रहा था विद इन अ रूम, विद इन 30, 40, 50 पीपल. नाउ दे इनवाइट पब्लिक टू कमेंट ऑन दिस एक्सपोजर ड्राफ्ट, क्योंकि अभी तक ये स्टैंडर्ड बना नहीं है. और एक बार अगर ये स्टैंडर्ड बन गया ना दोस्तों, तो चेंज करना आसान नहीं होगा. तो ASB कहता है कि इससे पहले ये स्टैंडर्ड बने, आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक इसमें दे दीजिए. ये जो ड्राफ्ट होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट, it is sent to all the people all over the India, and then they are given a deadline that if you have any suggestions, complaints or any objections or anything in the particular draft, you have to submit your viewpoints by this date. Now after they receive all the suggestions and points from the public at large, ASB फिर से मिलता है और उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करता है, और जो एक्सेप्टेबल है नहीं है उसके बेसिस पे एक और ड्राफ्ट बनता है. दैट फाइनल ड्राफ्ट इज देन सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ ICI. दैट ड्राफ्ट विच इज अप्रूव्ड बाय ASB, फर्स्ट अप्रूव्ड बाय ASB, sent for assent to the president of ICI and thereafter submitted to Ministry of Corporate Affairs. और एक बार जब Ministry of Corporate Affairs से वो अप्रूव हो जाता है तो दोस्तों वो ड्राफ्ट नहीं रहता है, वो बन जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड देन इट इज issued to the public at large. So my dear friends, if you check over here, I've given you a list of accounting standards which are issued by the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.
ये लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दी है। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप ये लिस्ट चेक करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 29, लेकिन आप देखेंगे ये जो दो मैंने हाईलाइटेड दिए हैं, AS6 has been removed and merged with AS10. Similarly, AS8 has been removed and merged with AS26. Sir, at foundation level, which standards do we have? हमें कौन कौन से standards पढ़ने हैं? तो at foundation level, you have to just read Accounting Standard 1, AS1, Accounting Standard 2, Valuation of Inventories, and you have to study some part of AS10, that is depreciation accounting. So जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहले depreciation पे एक पूरा अलग स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन अब इसे मर्ज कर दिया AS10 में, और सिर्फ इतना ही नहीं, AS10 का नाम भी बदल के कर दिया गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इफ यू रेफर माय क्लास बुक, सो देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, चैप्टर नंबर 6, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके बाद मैंने दिया है चैप्टर नंबर 7 ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। और रही बात AS1 की, तो ये स्टैंडर्ड हम लोग अभी देखने वाले हैं इन द सेम चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। करेक्ट। सिर्फ आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिस्ट सिर्फ आपको रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है, नो अदर पर्पस। आई हैव ऑल्सो गिवन यू लिस्ट ऑफ IND AS। व्हाट आर द IND AS? IND AS, I told you, they are the converged Indian accounting standards, correct? Followed by the list of, you can see. Now we come to the first accounting standard, बहुत छोटा है but interesting है, disclosure of accounting policy। ब्रॉडली दोस्तों, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 चीज़ों के बारे में बात करता है जो आपको हाईलाइट करना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें क्या है? फर्स्ट थिंग जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। सेकेंड थिंग दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट इज व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while selection of an accounting policy, and third factor what we are going to consider is disclosure requirements. That's all. बस इतना हो गया कि ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सो अगर आप पेज टर्न करके देखते हैं आपके क्लास बुक के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 5 या 6 पे, जहां अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस खत्म हुए हैं, वहां दोस्तों मैंने आपको एक ब्रैकेट में दिया है एज पर AS1 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। कम ऑन, प्लीज टर्न योर पेजेस टू चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 5 और 6 पे होगा, चेक कीजिए। आई हैव गिवन ओवर देयर। Come on, check. It's just cross linking. मिला आपको वहां पे? Yes. तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन का मतलब क्या है? तो जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो वो अकाउंटिंग करते समय कुछ असम्पशंस मेरे माइंड में होंगे जो होना ही चाहिए। तो मेरे माइंड में होगा गोइंग कंसर्न, कि अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो एक फंडामेंटल असम्पशन है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी, एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैंने फॉलो की है उसे मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करता जा रहा हूं। एंड एक्रूअल, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, मतलब एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू, पेमेंट नॉट नेसेसरी। मैं अपने सारे दोस्तों से कहूंगा कि अगर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस रिवाइज करना है, नो नीड टू वेस्ट योर वॉच टाइम ऑफ द प्रेशियस वर्चुअल लेक्चर्स। आप मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं और मैंने वहाँ एक वीडियो पोस्ट किया है ऑन हाउ टू आई एक्सप्लेन हाउ वी स्टडी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो इंस्टेड ऑफ wasting your watch time over here which you can utilize for any other topic, you can simply go to my YouTube channel and watch the video on accounting concepts and conventions. The second thing what this standard talks about, again we have seen all these points, just summarize करना है। What are the factors to be considered while selecting an accounting policy? जब मैं कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, अब अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है अकाउंटिंग करने की चॉइस या ऑप्शंस। तो मेरे कॉमर्स के फ्रेंड्स को शायद थोड़ा बेटर समझेगा, डेप्रीसिएशन की मेथड्स, ठीक है,
तो प्राइमरीली हमें एज ऑफ नाउ दो मेथड्स पता है, SLM या WDV। तो मैं कौन सी मेथड फॉलो करूं, इट्स एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ये डिसीजन मैं किस बेसिस पे लेता हूं, ये डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए, तो वो फैक्टर्स है 3। नंबर 1, द फर्स्ट फैक्टर टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज प्रूडेंस। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। You should select such an accounting policy which gives the most conservative picture of your business. Conservative मतलब expenses should be on higher side, income should be on lower side, उसे कहते हैं conservative picture. There should be substance over form. अब ये पॉइंट मैं आपको अभी यहाँ फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इन चैप्टर नंबर 6 and 7। अभी के लिए इतना समझ लो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। समझ में आ रहा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और तीसरा होता है मटेरियलिटी। मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें मटेरियल ट्रांजैक्शंस कंसिडर होने चाहिए, कुछ छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस कंसिडर नहीं हुए तो चलेगा। लास्ट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। There are total 4 disclosure requirements laid by AS1. Well, really speaking, in every accounting standard, they have their own set of disclosure requirements जो आपको फॉलो करना है, लेकिन उसके अलावा इस स्टैंडर्ड ने एक जनरल 4 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दिया है जो आपको करना ही है। सबसे पहले है ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज किया है उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है, और ये जो डिस्क्लोजर होगा वो एक जगह होना चाहिए एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शुड बी डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस, और वो एक प्लेस को कहा जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर पॉइंट नंबर 1, that all the accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statements should be disclosed. Point number 2 कहता है such disclosure should be done at one place and this should be attached to the financial statements, और वो डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, notes to accounts. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नंबर 3 अच्छे से समझिएगा। ये रिक्वायरमेंट कहती है, समझना अच्छे से, कि अगर मैंने करंट ईयर, if in the current year I have changed an accounting policy as compared to the previous year. So let's take an example. I was following straight line method of depreciation last year. It's no more relevant, but just understanding purpose. I was following straight line method of depreciation last year and I'm switching to WDV method in the current year. So it's change in accounting policy. So if there is change in accounting policy in the current year as compared to last year, तो मुझे ये फैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच किए हुए नोट्स में बताना पड़ेगा कि मैं लास्ट ईयर तक SLM फॉलो कर रहा था और इस साल से मैंने चेंज किया है WDV पे। ये तो पहली चीज है, समझ में आ रहा है आपको, कि मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, ये फैक्ट बताना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चेंज के वजह से मेरे प्रॉफिट पे कितना असर पड़ा है, ये फैक्ट भी मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। So, disclosure requirement number 3 states that if during the year there is change in accounting policy from the one which was followed in the previous year, you need to disclose that fact in your notes to accounts. Not only that, you also need to ascertain its impact on current year's profitability and also disclose that fact in your profitability. पर सर अगर पॉसिबल ही नहीं है तो कि प्रॉफिट पर असर कैसे कैलकुलेट किया जाए, वी आर नॉट एबल टू असरटेन, विजुअलाइज, तो आपको ये फैक्ट वहां लिखना पड़ेगा कि दिस डिस्क्लोजर इज नॉट पॉसिबल when such amount is not ascertainable wholly or in part. The fact should be indicated कि yes, based on the given circumstances and prevailing information, we are not able to ascertain the impact on profitability. इफेक्ट नंबर 4, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नंबर 4 जो होती है वो ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल मतलब क्या, ये कहता है कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो हुए हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, अभी हमने देखा है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। तो अगर ये तीनों फॉलो हुए हैं तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर ये तीनों फॉलो नहीं हुए तो आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये तीनों फॉलो नहीं हुए। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1/4/2017 टू 31st March 2018। और अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और हुआ ये कि देयर इज अ सीवियर फायर एट योर फैक्ट्री ऑन 7th April 2018 और आग इतनी बड़ी लगी है कि अब आपकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ। दैट मीन्स योर फैक्ट्री कैन नॉट वर्क एनी मोर। दैट मीन्स योर गोइंग कंसर्न इज वायलेटेड। तो जब आप 17-18 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो उसके साथ अटैच किए हुए नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ये लिखना पड़ेगा कि एज ए रिजल्ट ऑफ फायर ब्रोक डाउन इन फैक्ट्री ऑन 7th April 2018, सीवियर फायर ब्रोक डाउन एट द फैक्ट्री बिल्डिंग, द कंपनी इज नो मोर कंटिन्यूइंग विद इट्स बिजनेस। सो दोस्तों, ये है सिंपल एंड शॉर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड दिस वाज द टॉपिक ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों, आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपका फाउंडेशन ले करेगा फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। और अब इसके बाद हम देखेंगे 2 टॉपिक्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 6 इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। Before I conclude this topic, I would like to say that, my dear friends, please visit on www.youtube.com and please visit to my channel by typing in the search pane as CA Anshul Agrawal and subscribe to my channel to stay updated for all the important videos, because your watch time is very precious and I'm making best possible attempt from my side to upload more and more videos for you ताकि आपका watch time waste ना हो। Also, please don't forget to like the videos over there। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, जो YouTube पे पोस्ट किया है वो किसी और के काम आ सकता है, तो प्लीज उसे शेयर करना भी ना भूले। You can connect to me on my Facebook and my Instagram। आपके क्लास बुक के शुरुआत में मैंने आपको दिया है कि आप जैसे ही अपना पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या डाउनलोडेबल लिंक एक्टिवेट करते हैं, आप सीरियल की यूज करते हैं, आप मुझे मैसेज भेज के कनेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा एंड देयर यू विल बी सेंट ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। चैप्टर नंबर 4 खत्म होने के बाद टेस्ट नंबर 2 ड्यू हो गया था, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई होप आपने टेस्ट नंबर 2 दिया होगा। जिसने नहीं दिया होगा प्लीज टेस्ट नंबर 2 दीजिए, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। थैंक यू, बाय बाय।